Good evening and welcome everyone to this class on agriculture related current affairs for UPSC CSC Prelims 2021. So yesterday we saw Essential Commodities Act and the Farm Services Bill. Okay, so today we are going to study the remaining part of Essential Commodities Act and the third bill, that is the facilitation bill as we call it, as the government has named it. So let's get started without much ado. Hope all of you are here and live. I have shared a recent the latest PDF. Now that one of our data entry managers is back again after his marriage and all, so you will be getting the Word documents regularly. Okay, so in between the Word documents were discontinued for a brief while. Now that he is back, so फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ये कल हमने कवर किया था. एंड देन उसके बाद हमने कवर किया द सेकेंड बिल. I hope all of you are reading these things simultaneously. You can now request for the word documents. There was a brief issue also with one of the students because of these word documents and all. Now, word documents will be back again because of the reason that, as I told you, the situation is not normal. 2-3 data entry managers we have, but some of them, because of their pressure from their families, they have to go back. Those things are there. Essential Commodities Act Amendment Bill हमने deal कर लिया था to a large extent. Now, regulation of the food items. The act empowers the central government. Okay, I'm not visible. Just 1 minute. Just a minute, guys. Can you see me now? Yes, I'm very much visible now. Okay, so this is there. Class is not lagging, Arshika, from my side. Kusum, Gautam and everyone. There are no glitches whatsoever from my side, okay? So you have to check in your end. Essential Commodities Act, first ordinance was promulgated on June 5, 2020. Then the Supreme Court had put a stay on 21st January 2021 on all the three farm reform laws. Supreme Court had put a stay. Supreme Court ने कहा कि अभी इन पे रोक लगा दो because farmers are protesting against it. And as I told you, the government had not notified the bills also. Okay, so it amends the Essential Commodities Act 1955. The act empowers the central government to control the production, supply, distribution, trade and commerce in certain commodities. The bill seeks to increase the competition in the agriculture sector and enhancing the farmers' income. It aims to liberalize the regulatory system while protecting the interests of consumers. We had covered all this in the previous class, yesterday's class. Regulation of food items. The act empowers the central government to designate commodities such as food items, fertilizers and petroleum products. Even the petroleum products also. Don't get confused in your exam if the question comes. The act empowers the central government to designate certain commodities, all the commodities which are related to agriculture. Please recollect our discussion on back-end and front-end subsidies. That is why the petroleum products are being put under this thing. Okay, Essential Commodities Act, the old one, 1955 one. Back-end and front-end. Okay, central government may regulate or prohibit the production, supply, distribution, trade and commerce of such essential commodities. Central government may regulate the or prohibit the production, even supply, distribution, even trade, everything. Now the bill, we are going to talk about the 2020 bill now. The bill provides that central government may regulate the supply of certain food items including cereals, pulses, potatoes, onions,
edible oil seeds and oils only under extraordinary circumstances. You could be asked a question around act. If the question is around the act, if the question is asked around the old act of 1955, then in that act, my dear students, petroleum products are also regulated. Prices of fertilizers are also regulated. But mind you guys that in the new bill, price of petroleum products is not regulated, is not covered under essential commodities. Clear? Price of fertilizers is also outside the purview. Am I clear to all of you? Is this clear, all of you? Done. These include war, famine, extraordinary price rise, and natural calamity of grave nature, like COVID-19, you can say. So, what are the grounds? There are 4 grounds. Extraordinary price rise is one of them. War or famine is another. Okay. See, guys, here it is not given drought or drought, whatever way you want to call it. Drought is not covered here. सूखा पड़ना, drought की वजह से खाने की आपूर्ति हो जाना, फूड स्कैरसिटी हो जाना, उसको हम फेमिन बोलते हैं. Drought induced famine only, or famine because of other reasons only. Let's say there is a lot of fog or snowfall or untimely rain. Famine could be induced because of these reasons also. Famine is covered, drought is not covered. Clear? So minute details. It's my job as a teacher, because you also know that UPSC is playing around these keywords. Drought, तुम बोलोगे हाँ drought induced, drought नहीं covered इसमें. When we are talking about legal matters, nitty-gritty or niceties of any law are very important. Natural calamity of grave nature. 10. Imposition of stock limit. The act empowers the central government to regulate the stock of an essential commodity that a person can hold. Okay, the 1955 Act. The bill requires the imposition of any stock limit on certain specified items must be based on price rise, extraordinary price rise, as we saw as the second or third reason, basically previous slide. Yeah. फैमिन क्या होता है? फैमिन तुम्हें नहीं पता फैमिन क्या होता है, पर पढ़ो एक बार. इफ्ती, फैमिन होता है जब अकाल पड़ जाता है खाने का. ठीक है, बेसिकली दैट इज व्हाट वी कॉल एज फैमिन. ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर. तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि प्राइस राइज किसकी वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज किसी भी रीजन की वजह से हो, राइट? तो ये सारा कुछ है. नाउ कमिंग हियर, फेमिन इज अ ब्रॉडर रीजन बेसिकली. तुम बीच में जो पूछ रहे हो, नेचुरल कैलामिटी में तो ड्राउट आ ही जाएगा. यस, आ ही जाएगा, बट ये देखो कि फेमिन आना एक अलग चीज़ है. अब सरकार ये कह सकती है कि नेचुरल कैलामिटी में हमने तो फेमिन लिखा था. जिस तरह के सरकार के हाल हैं उस तरह से बात करो ना. मतलब नेचुरल कैलामिटी इज़ अ वेरी वाइड ब्रैकेट. इट कवर्स ड्राउट. Yes, it covers drought, but specifically the drought is not mentioned. Okay, let me give you an example for prelims. If okay, just 1 minute guys. One of our teachers, your science teacher, is going to start his classes from tomorrow 12:30, so he's asking me about the technicality of how the classes are conducted. So sorry for digressing. Now coming back, drought आ जाएगा, लेकिन अगर prelims में ये statement दी हो कि the act specifically mentions drought, no, act does not specifically mention drought. But if it is given the basis on which the government can regulate the prices under the new act includes drought, yes, answer would be yes then. But natural calamity, ब्रॉडली नेचुरल कैलामिटी दे रखा है. इंक्लूड्स में तो फिर सबज्यूम हो गया ना इसका मीनिंग, उसमें मिश्रित है. सबज्यूम, इट इज सबज्यूम्ड अंडर दिस. क्लियर?
So then in that case you are right, but the word that is mentioned is not drought, it is natural calamity or it is famine. Clear? अब यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी ड्राउट की वजह से देखो, जितने ज़्यादा हम ये कहें कि वेदर डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर कम होती जा रही है, उतना ड्राउट का असर कम होना चाहिए, राइट? जहाँ पे एरिया में रेन फेड एग्रीकल्चर कम है, कैनाल सिस्टम अच्छा है पंजाब में, हरियाणा में, तो वहाँ पे ड्राउट का इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए ड्राउट नहीं लिखा गया। ये आप समझने के लिए पॉइंट रख सकते हो अपने दिमाग में। Now, very nice, Praveen. Act of God. A stock limit may be imposed only if there is 100% increase in the retail price of horticultural products. Horticultural products को तो सरकार रेगुलेट ही नहीं करेगी, ठीक है, जब तक 100% इन्फ्लेशन ना हो जाए। 50% increase in the retail price of non-perishable agricultural food items. Clear? The increase will be calculated over the price prevailing immediately preceding 12 months or the average retail price of last 5 years, whichever is lower. Done? Immediately preceding 12 months में तो इसमें भी एक कैच है, बट अभी के लिए तुम सिर्फ याद रखो प्री ओरिएंटेड, अभी मेंस ओरिएंटेड में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। और द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 years, एवरेज रिटेल प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों यहाँ पे एक साल प्राइस जो है एक साल पहले क्या था, या फिर रिटेल प्राइस 5 साल की एवरेज क्या थी, एवरेज ऑफ लास्ट 5 years. ओके, immediate 1 year before. The bill provides that any stock limit will not apply to a processor or value chain participant. Any value chain one, clear? So these things are there. Now coming to the other aspects here, the bill provides that any stock limit will not apply to a processor or value chain participant of agricultural produce if the stock held by such person is less than the overall ceiling. Okay, so these things are there. Now coming to the other aspects, just give me 1 minute. तो एक पीपीटी ये दूसरी है जिसको मेरे को चेक करना है. Has the team shared that particular PDF with you in which they have dealt with this thing, agriculture related schemes and policies? The bill provides that any stock limit will not apply to a processor. Processor means शक्ति भोग आटा टाइप जो कंपनीज हैं, या फिर जो हमने एग्जाम्पल्स में बात करी थी, कौन सी कंपनी तुम्हारी, ताजमहल राइस, ठीक है, इसमें टी प्रोडक्ट्स वगैरह कवर्ड नहीं है, राइट? टी पाउडर, कॉफ़ी एट्सेट्रा इज नॉट कवर्ड. Just for your reference here, okay? So as you are on the right side of the question, so value chain participant of agricultural produce if stocks held by such person is less than the overall ceiling of installed capacity. हाँ, ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है जो कल मैं तुम्हें समझा रहा था. अगर किसी के पास गोडाउन है 100 मिलियन टन्स का, लेकिन उसकी एक महीने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 30 मिलियन टन, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 मिलियन टन, स्टॉक लेके चल रहे हो आप 3 महीने से ज़्यादा का, है ना? किसी के पास आटा चक्की है, वो आटा चक्की देखते हो ना अपने गांव में, ऊपर से आटा डालते हैं, नीचे से, ऊपर से अनाज डालते हैं, नीचे से आटा निकलता है, राइट? तो अगर किसी के पास ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 30 मिलियन टन पर मंथ, और अगर कोई स्टॉक लेके चल रहा है 100 मिलियन टन्स, तब तो ये स्टॉक लिमिट विल अप्लाई बिकॉज स्टॉक लिमिट आप ज़्यादा लेके चल रहे हो, एक्सेस में लेके चल रहे हो. लेकिन अगर इसमें 30 मिलियन टन ही रखा है, कैपेसिटी भी 30 मिलियन टन की है प्रोडक्शन की, तो ठीक है. बिल प्रोवाइड्स दैट एनी स्टॉक लिमिट will not apply to a processor or value chain participant, anybody in the value chain addition
of an agriculture produce if the stock held by such person is less than, यहाँ पे equal to नहीं लिखा, less than लिखा है, ठीक है, less than the overall ceiling of installed capacity of processing. Demand for export in case of an exporter. अब उस एक्सपोर्टर का पिछले महीने का बिल चेक किया सरकार ने, उसमें लिखा है 30 मिलियन टन उसने राइस एक्सपोर्ट किया था बांग्लादेश को या नेपाल, सारी कंट्रीज़ को मिला के. तो उसके केस में तो फिर अगर उसने जून में मार्च में ये 30 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था, अप्रैल में उसके पास 30 मिलियन टन ही रखा है, और अप्रैल में फेमिन अप्रैल में मान लो फूड स्कैरसिटी क्रिएट हो गई या प्राइस एडवर्स केस में बहुत ही ज़्यादा राइज होने लग गया. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस government will not impose any penalty or ceiling on him. Why? Because his export bill tells the government that the quota, the quantity that he is holding is near equal to the exports made by him, item, commodity, the same commodity exported by him in the previous year itself, right? Is this clear? All of you? So these things are there. Then coming to the other aspects, meaning of value chain participant. Value chain participant means a person engaged in production or in value addition at any stage of processing. अब मान लो देखो, यहाँ से फार्मलैंड से काम स्टार्ट हुआ, ये खड़े हैं तुम्हारे गन्ने, शुगर केन, ठीक है, जो भी है. अब यहाँ से फसल की कटाई हुई, ये गोडाउन वाला है. अब ये गोडाउन वाली जो कंपनी है इसका नाम है किसान स्टोरेज लिमिटेड, ठीक है, या फिर किसान है या फिर कोई और गोडाउन वाला है. अब ये आगे फूड ग्रेन्स सप्लाई करेगा किसको? किसान व्हीट फ्लावर लिमिटेड. व्हीट फ्लावर मतलब आटा कंपनी. यहाँ पे फिर ये आगे एक और कंपनी है जो किसान पैकेजिंग लिमिटेड है. अब ये पैकेजिंग लिमिटेड के गोडाउन में अगर ये पाया गया तो भी किसी भी पार्टिसिपेंट के पास अगर फूड ग्रेन्स ज़्यादा पाए गए एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, यहाँ पे हो गई यहाँ पे हो गया चलो तुम्हारा स्टोरेज, यहाँ पे हो गई प्रोसेसिंग, यहाँ पे हो गया पैकेजिंग, कहीं पे भी स्टोरेज या कोई, अब मान लो कि ट्रांसपोर्टर के डिपो में चला गया, ट्रांसपोर्टर ने किसान जैम वाले को बोला या किसान व्हीट फ्लावर वाले को बोला कि तुम सारा जो भी तुम्हें आइटम ट्रांसपोर्ट करनी है पंजाब से तमिलनाडु, वो तुम मेरे सारे गोडाउन्स में लेके आओ. अब अगर इन चारों के पास देखो, एक महीने में किसान मार्केटिंग लिमिटेड जो है ना, किसान पैकेजिंग एंड मार्केटिंग लिमिटेड जो है 100 मिलियन टन एक्सपोर्ट करती है या सेल करती है. अब तुम ये देखो कि 100 मिलियन टन सेल करती है, लेकिन अगर उसके गोडाउन में 100 मिलियन टन एक पड़ा है, आटा 100 मिलियन टन एक प्रोसेस हो रहा है, चक्की चल रही है दिन रात, और पैकेजिंग के लिए 100 मिलियन टन और पड़ा है, और ट्रांसपोर्टर के पास जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है या किसान ट्रांसपोर्टर लिमिटेड जो है, जो एक ही इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है इनकी, ठीक है, ये सारा कुछ इन हाउस है इनका, आउटसोर्स ये नहीं करते कोई भी काम. तो इनके पास तो इस हिसाब से 100 मिलियन टन प्लस 100 मिलियन टन प्लस 100 प्लस 100 400 मिलियन टन हो गया ये तो, जबकि कैपेसिटी 100 मिलियन टन है, ठीक है. एट एनी, यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि एग्रीगेट सेल कितनी है या कैपेसिटी कितनी है. यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इसके पास कहीं पे भी एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में अगर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के पास कहीं पे भी फूड ग्रेन ज़रूरत से ज़्यादा है, उसका एग्रीगेट करके उसकी रॉन्ग इंटेंशन नहीं देखी जाएगी कि तुम इतना सारा धन या इतना सारा अनाज क्यों स्टोर कर रहे थे. डायरेक्ट मार्केटिंग का नाम अलग दे दिया कंपनी को. बिग बाज़ार के एग्जाम्पल से समझ सकते हो ना, बिग बाज़ार गोडाउन्स लिमिटेड, बिग बाज़ार प्रोसेसिंग लिमिटेड, बिग बाज़ार पैकेजिंग लिमिटेड, फिर बिग बाज़ार ट्रांसपोर्टेशन, फिर फाइनली बिग बाज़ार रिटेल. ये तो गलत है. अब अलग अलग कोई आदमी कंपनियां बना ले, बिग बाज़ार बिग बाज़ार बिग बाज़ार, तो छोटा आदमी तो वैसे ही मर जाएगा. समझ में आया? और ये हो भी रहा है. तुम देखोगे कि बिग बाज़ार वगैरह पे आरोप लगते हैं कि तुम कैश एंड कैरी मॉडल लेके आओ. कैश एंड कैरी मतलब तुम किसी थर्ड पार्टी एंटिटी से, किसान से या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीद सकते हो, लेकिन तुम अपना वेयर हाउस या गोडाउन नहीं बना सकते. इन साले चोरों को ये पता लग गया है, ये जो अंबानी अदानी और ये सब हैं, कि अब पैसा बचा है इनमें. तेल वेल तो सब खा गए ये, इंडिया में अब तेल कहाँ बचेगा, समझ रहे हो ना. पेट्रोल वेट्रोल नहीं बचेगा, कोयला भी की खदानें, कोल माइंस भी इन्होंने लूट ली जो लूटनी थी.
अब बचा क्या है? फूड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट बिग थिंग टू हैपन इन इंडिया इज फूड. कंज्यूमरिज्म इज राइजिंग. सो ये क्या चाह रहे हैं सरकार से? अब तक जो अनअटेंडेड एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें ये इंटीग्रेशन लेके आने के लिए ऐसे ऐसे बिल मंगा रहे हैं. समझ में आया? ठीक है, वर्ड्स ऑफ गलत हो सकते हैं बट मंशा मेरी भी पढ़ाने की बिल्कुल सही है. समझ रहे हो ना? अब मोबाइल तो लूट लिए, जियो के साथ तुम्हारा मरो करवा दिया फ्री में बांट बांट के. आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है तुम्हें बोला जाएगा कि 10 किलो आटा लो 15 किलो फ्री. ठीक है, उसके बाद मरो ना हो. सो कमिंग हियर, तुम लोग जिस बात नहीं समझते हो इसीलिए हंसते हो मेरी बातों पे, है ना? मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट. अच्छा, जो मैं चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिकल समझाता हूँ क्लास में वो तुम रियल लाइफ में अप्लाई करते हो. तुम बताओ वो अप्लाई नहीं होती? चाहे धन अकेडमी के एग्जाम्पल हो, चाहे अपना पर्सनल हो, चाहे कहीं हो, उबर ओला हो, है ना? झोला तो तुम्हारे साथ होता है ना, मतलब झोल जो तुम देखते हो उस पर ये एग्जाम्पल अप्लाई होते हैं कि नहीं? नाउ कमिंग हेयर, applicability to public distribution system. The provision of the bill regarding the regulation of the food items shall not be on, and the imposition of the stock limits will not apply to any government order relating to the public distribution system or the targeted public distribution system. Clear? सो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ये नहीं अप्लाई होगा. एनी विल नॉट अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट ऑर्डर. अब यहाँ पे कैच पता है क्या है? अगर मैं लीगल वे से पढ़ूँ, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि गवर्नमेंट रन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. गवर्नमेंट ऑर्डर relating to public distribution system. Tomorrow it could be the case that you will see public distribution system being outsourced. Then it will not apply. समझ रहे हो? कल को ये भी हो सकता है कि अदानी ने सरकार के गोडाउन्स ले लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क चलाने के लिए, क्योंकि यूएसए में यही हो रहा है. ठीक है, वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह वैसे तो है ही नहीं क्योंकि वो लोग अमीर हो गए, लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम देखा गया है. अब अदानी ने एक तरफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, अनाज जो चोरी के स्टोर करने हैं 40 मिलियन टन वो इधर कर दिए, और दूसरा एक ये खोल रखा है अदानी फूड सर्विसेज. और ये अदानी नाम जो है काल्पनिक है, इसका वास्तविक विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है. राइट? कल को पता लगे मैं पॉलिटिक्स में कहूँ तुम मेरी क्लास निकाल के दिखा रहे हो वहाँ पे, पता थोड़ी है कोई जिंदगी का. राइट? नाउ कमिंग हेयर, अब उनसे फंडिंग तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि गटर में रह के ही गटर को साफ किया जाता है, लेकिन आदमी एक ऐसा है जो गटर में घुस ही गया है. समझ रहे हो ना तुम कौन? नाउ कमिंग हियर टू बैक टू द क्लास. तो अब यहाँ पे ये हो सकता है अदानी फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये तो सिर्फ नाम के लिए इसमें 10-4 बैग रखे हुए हैं. जब कभी बैग चाहिए होंगे प्राइवेट में, यहाँ पे अनाज बिक रहा है 2100 रुपये किलो, यहाँ पे बेचना होता है 1400 रुपये किलो. ठीक है, अब यहाँ से जब कभी मुनाफे के लिए निकालना है, ज़रूरत से ज़्यादा फूड ग्रेन जो स्टोर कर रखा है गवर्नमेंट के नाम पे कि गरीब लोगों को देने के लिए है, अगर मौका मिलेगा ये 2400 हो जाएगा, या इसको 2400 करना है तो क्या करो, 40 मिलियन टन को 140 मिलियन टन स्टोर कर लो. अपने आप स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में वीट आता तो उतना ही है, ग्रो तो उतना ही होगा. ऐसा थोड़ी है कि एकदम से इंडिया 2000 मेट्रिक टन मिलियन टन ग्रो करने लग जाएगा. 200 मिलियन टन ग्रो होगा, उसमें से 140 मिलियन टन स्टोर कर लो सरकार के नाम पे, और फिर उसके बाद स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगी, प्राइस हो जाएगा 2400. कहो कि ये तो रखा है, अगर कोई रेड मारेगा तो ये बोलो कि ये सरकार के लिए रखा है, यानी कि गरीब लोगों के लिए, लेकिन बेचते रहो उसे आराम से. ठीक है? क्लियर? So this is there. Now under these systems food grains are distributed by, अभी facts पे थोड़ा सा focus करा दूँ तुम्हें. Shift E. The provisions of bill regarding the regulation of food items and the imposition of stock limits will not apply to any government order. अगर गवर्नमेंट कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंजाब में है आटा दाल योजना, राइट, या कोई छत्तीसगढ़ का तमिलनाडु की अम्मा स्कीम है, अगर सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोई चलाया है, उस पर कोई भी अपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी.
right? Under these systems, food grains are distributed by the government to eligible persons at subsidized prices. So this is there, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020 seeks to provide a national framework on farming agreements. A national framework on farm. अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, एक पॉज ले लेते हैं, थोड़ी देर का मौन. Done. Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services. ये क्या है? इसको पॉपुलरली या कोलोक्यूली इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कहा जा रहा है. ठीक है, शॉर्ट में इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से याद रख सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. It seeks to provide for a national framework on farming agreements that protects and empowers the farmers to engage with agribusiness firms, processors, wholesalers, exporters, or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner. To engage, ताकि फार्मर, देखो अब फार्मर को जो तुम्हें मैंने मंडी सिस्टम समझाया था, एपीएमसी सिस्टम के शैकल से तो फ्री कर दिया. अब उनके पास ऑप्शन क्या है कि तुम अब यहाँ नहीं जाओ, तुम सीधा यहाँ से बड़े बड़े किनके साथ डील करो? एग्री बिजनेस फर्म्स के साथ, प्रोसेसर के साथ, शक्ति भोग आटा के साथ, होल सेलर्स के साथ. ठीक है. और फॉर फार्म सर्विसेज क्या है? आटा पिसवा के प्रोसेस कराना है या फ्रूट्स की जैम एंड जेली बनानी है, जो भी करना है. एंड सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग, यानी कि तुम्हारे साथ ना मैं मेंस के कोर्स में ज़रूर मिलना. अगस्त 2017 की एक फ्रंट लाइन है, अगस्त 2013 सॉरी, उसके बाहर वो ट्रैक्टर बना हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग है और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो मैंने बताया वो एक अलग है, और लैंड लीजिंग अलग है. ठीक है, लैंड लीजिंग, लैंड ठेके पे देना, दो पार्ट हैं इस अग्रीमेंट के. अभी सरकार ने यहाँ पे एक ही लिखा है. ठीक है, तुम कहते हो कि मैं मेंस के लिए नहीं समझाऊं, बीच बीच में कुछ लोग जो बोलते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात. एक होता है कि किसी की ज़मीन लीज पे लेना. जैसे अभी हमने एक क्लासरूम लिया मान लो, ठीक है, उस क्लासरूम को हम रिफर्बिश करा रहे, रेनोवेट करा रहे हैं, इंटीरियर्स करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं. मीन्स when you hire somebody's land on lease for 6 years or a showroom or anything, you develop a permanent interest. You will take care of the soil, quality of soil health, etc. But when you are only interested in contract farming, so a company, let's say Pepsi in this case, is choosing this one over this one. Okay, कंपनी इज चूजिंग दिस. यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है कि मुझे इस बार की पर हेक्टेयर यील्ड ज़्यादा चाहिए. ये वो है जो अंग्रेज़ों ने किया था. समझ में आया? उनको क्या चाहिए था? फार्मर भले ही सूखा लकड़ी हो जाए गन्ने की तरह, लेकिन चीनी का उत्पादन, कॉटन का उत्पादन, इंडिगो फार्मिंग ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन परमानेंट इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है कि सॉइल में प्रॉपर मैन्योर्स अप्लाई करना. यहाँ पे क्या है, तुम मॉन्सेंटो के, अगर कोई बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएगी, वो मॉन्सेंटो की हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लगाएगी, अप्लाई करेगी, न्यूट्रिएंट सकिंग, न्यूट्रिएंट चूसने वाले फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेगी. उसके बाद उस सॉइल का क्या होगा, उसके बाद क्या अंजाम होगा उस सॉइल का? बाद में वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, बैरन लैंड हो जाएगी. हार्डली मैटर्स टू देम. समझ में आया? तो ये कम कैपिटल इंटेंसिव है.
this is more capital intensive because here the company would be hand holding the farmers. समझ में आया? Company would be hand holding the farmers in this model, whereas company would be मेकिंग द फार्मर्स फोल्ड दी हैंड की बस इतनी यील्ड दो. अगर तुम्हारे यील्ड में मॉइस्चर है, कम है, मॉइस्चर क्वांटिटी ज़्यादा है, रिक्वायर्ड नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो कम प्राइस मिलेगा. अगर अप्रोप्रिएट है, स्टैंडर्ड सेटिंग ये सब है तो ठीक है. स्टैंडर्डाइज्ड है तो ठीक है, वी विल परचेज इट एट द agreed price, otherwise company will say we refuse. Clear? It seeks to provide a national framework on farming agreements that protects and empowers the farmer to engage with agri-business firms. हो गया? Now, please read these lines from the government magazine and all. Indian agriculture, ये योजना से लिया था शायद. Indian agriculture is characterized by fragmentation due to small holding sizes and has certain weaknesses such as weather dependence, production uncertainties and market predictability. Okay? फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस खरीदने का अग्रीमेंट तुम कर रहे हो, लेकिन तुम बातें ये कर रहे हो कि लैंड फ्रेगमेंटेशन इससे कम होगा, कुछ हद तक कम होगा. जब तक लैंड लीज पे नहीं ली जाती कंपनी के द्वारा तब तक दिक्कत है. ठीक है? एट अ म्यूचुअली अग्रीड रेम्यूनरेटिव प्राइस फ्रेमवर्क इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और मैटर्स विच आर इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट और परचेज ऑफ द प्रोड्यूस एट अ फ्यूचर डेट. This makes agriculture risky. So the Indian agriculture is characterized by fragmentation of land holding due to small holding sizes, and it has certain weaknesses, production uncertainties, etc. This makes agriculture risky and inefficient in respect to both input and output management. This legislation will transfer the risk of market unpredictability from the farmer to the sponsor and also enable the farmer to access modern technology. As I told you, tractors lease पे दिए जाएंगे, harvester, scientific machines etc. वो सारा कुछ, better inputs, it will reduce the cost of marketing and improve income of farmers. Farmers will engage in direct marketing, thereby eliminating intermediaries, resulting in full realization of price. Farmers have been provided adequate protection. Farmers will engage in direct marketing, thereby eliminating intermediaries, resulting in full realization. As we talked about intermediaries, commission agents. Effective dispute resolution mechanism has been provided for with clear timelines. If I ask you what is the most important input for agriculture, please answer. What is the most important input for agriculture? Answer quickly. Input पूछ रहा हूँ. Input. Monsoon माने water. Water. What is the second most important input for agriculture? Second, third, fourth. बता दो अपने आप. Seeds, water, fertilizer, right? सबसे important है water. अब यहाँ पे लिखा है इनपुट मैनेजमेंट. ब्रिटिशर्स ने तो फिर भी ठीक किया था. तुम्हें लगता है ये प्राइवेट कंपनीज फार्मर को पानी दे देंगी, कैनाल सिस्टम डेवलप करवा देंगी? ये हो सकता है कि इन पूंजीपतियों के दबाव में आके, कैपिटलिज्म के दबाव में आके सरकार इनको ये बोले कि मैंने यहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन या 1000 एकड़ ज़मीन ली है, 1000+ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, यू हैव टू डेवलप अ कैनाल हेयर. तो यहाँ पे अगर मान लो कल को अदानी ने ज़मीन ली, अदानी सरकार से पहले प्रोजेक्ट पास करवाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैनाल आएगा. ये हो सकता है. ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है. तो इसका कैनाल का बेनिफिट किसको मिला? किसान को मिला. किसान तो पहले ही डील साइन कर चुका होगा. कितने में?
70,000 रुपये बीघा या 30,000 रुपये बीघा पर ईयर, 30,000 रुपीज़ पर बीघा ऑफ लैंड पर ईयर। ये तो हो गया। अब अगर ये प्रोजेक्ट बाद में अनाउंस किया जाए कैनाल सिस्टम वाला, तो इस ज़मीन का जो कैनाल के कवरेज में आती है, कैचमेंट एरिया में जिसे हम बोलते हैं ज्योग्राफी में, अगर कैचमेंट एरिया में आती है किसी रिवर या कैनाल के, तो इसका प्राइस पता है कितना हो जाएगा? 70,000, 60,000। सो दिस इज़ दी कैच हेयर। आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें होंगी, तुम देखोगे। जैसे तुम देखते हो ना कि आज डीएलएफ एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद तुम देखते हो हरदीप सिंह पुरी या जो भी मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हैं, टेढ़े मुंह वाले या जो भी है, ठीक है, मैं वेंकैया नायडू की बात कर रहा था, उनके थोड़े दिन जब मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट थे, नोएडा में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, डीएलएफ ने रिबन काटा, उसके बाद दूसरा रिबन काटने आ गए मेट्रो ट्रेन का। ठीक है, इसको क्या मेट्रो ट्रेन का रिबन क्या काटा? इस डीएलएफ सेक्टर 420 तक मेट्रो आएगी। उसी दिन जो फ्लैट 40 लाख का था वो 90 लाख रुपीज़ का हो गया। मतलब समझ में आया? तो ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ऐसे ही होती है, समझ रहे हो तुम? तो अब ये एग्जाम्पल जो है इसमें रेप्लिकेट करना है एग्रीकल्चर में। पैसे तो कैनाल वगैरह डेवलप कर दो तुम वो इनपुट क्या लगाएगा? कितना फर्टिलाइजर लगा लोगे, कितनी ड्रिप इरिगेशन कर लोगे, कितना मॉनसून पे रिलायंट हो जाओगे, कितनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले आओगे? ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैं। तो फर्टिलाइजर वगैरह लगाना वो सब सेकेंडरी आउटपुट्स हैं, सेकेंडरी इनपुट्स हैं। तुम्हें सबसे पहले चाहिए वाटर। कभी कोई सुना है कोई क्रॉप वाटर के बिना उगती हो? नहीं सुना। कभी ये सुना है कोई क्रॉप फर्टिलाइजर के बिना उगती हो? यस। कभी ये सुना है कोई क्रॉप इंसेक्टिसाइड्स के बिना ग्रो करती हो? यस। कभी सुना है कोई क्रॉप एमएसपी के बिना ग्रो करती हो, प्राइस गारंटी के बिना ग्रो करती हो? यस। पानी इज़ दी ओनली थिंग। पानी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, दूसरा बड़ा जो लेकुने है इन बिल्स के बावजूद, वाटर स्कैरसिटी कैसे एड्रेस होगी, इसके लिए कोई प्लान नहीं है सरकार के पास। तो ये कोई पूंजीपति या कुछ भी हैं, पानी थोड़ी ना पैदा कर देंगे। या तो ये ग्राउंड वाटर को बहुत तेज गति से एक्सप्लॉइट करेंगे, विच माइट फर्दर लीड टू एडवांसमेंट ऑफ इंडियाज वाटर क्राइसिस। ठीक है, गशिंग आउट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स एटसेट्रा। So this is the catch here. If the contracting company is going to enter into just contract farming instead of land leasing. लैंड लीजिंग इसीलिए यहाँ पे नहीं किया जाएगा, शायद किया जाएगा तो उसके और पहलू हैं, वो बाद में डील करेंगे। समझ में आया? दूसरा बड़ा जो पहलू है, जो फैलेसीज, जो फ्लॉज मैंने तुम्हें एग्जिस्टिंग एपीएमसी एक्ट में बताए थे, आज फार्मर क्यों मजबूर है? क्या उसके पास अकल नहीं है? उस फार्मर के बच्चे जट हैं, जाट हैं, जो वो हार्दिक पटेल जो पाटीदार्स हैं, जो सरकार के नाक में दम करके रह गए रिजर्वेशन के लिए, है ना? तो उनके पास दिमाग नहीं है कि वो एपीएमसी में ना बेच के कहीं और बेचना चाहे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उनके पास में दिमाग है। क्यों वो फिर अभी तक एपीएमसी को बेच रहे थे? वो एपीएमसी को इसलिए बेच रहे थे क्योंकि ये जो आड़तिया है, जिसे हम कमीशन एजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ये उनको फिनेंस देता है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं दे पा रही। समझ में आया? तो 2-3 रीज़न ही तो हैं कि फार्मर को ये सारा कुछ चाहिए होता है। यस शिखा, यू आर वेरी राइट। ठीक है, तो अभी तो मिनी चंडीगढ़ बन रहा था वहाँ पे। समझ में आया? तो 2 प्रॉब्लम्स तो एड्रेस ही नहीं करी। फिनेंस कैसे आएगा? अब अगर ये फिनेंस देंगे तो ये भी तो कोई दानी तो है नहीं, इसी के नाम के आगे लिखा है अदानी। दान के अलावा ये सब करेगा, दानी नहीं है, अदानी है। समझ रहे हो ना? ना ही नादानी लिखा है। तो मतलब समझ गए तुम बात का? मेरी जज्बात समझने हैं, राइट? नाउ सो दिस इज दी कैच हेयर। अब ये चीज़ें याद रह जाएंगी। फार्मर विल एंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, देयर बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग में क्या अप्लाई होता है, ये तुम धन अकेडमी से पूछो। अब अगर मैं एक फार्मर हूँ, मान लो टीचर हूँ, मैं उतनी तरह की मार्केटिंग कर सकता हूँ जितनी बड़ी कंपनी कर लेगी? नहीं कर सकता। लेकिन खेती करनी, पढ़ाना मैं अच्छे से जानता हूँ। तो फार्मर जो गलिबल है, जो आज तक बेचारा जिसे कहते हो सुइसाइड करने वाला, वो मार्केटिंग करेगा।
अनरियलिस्टिक है. डिड यू लॉन्च एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनी काइंड ऑफ कैंपेन फॉर मार्केटिंग एट्सेट्रा? नो. Farmer, did you create a kind of scheme for farmer entrepreneurs? No. Clear? Just a minute, this is your official phone that is ringing here. Sorry guys. So these things are there now. Clear to everyone? अब चलते हैं आगे फटाफट. Contract farming bill basically provides a framework for buyers and farmers to enter into a contract before a crop season starts. अगर मुझे तुम्हारे लिए इसकी पूरी फील्ड तैयार करनी हो ना, तो तुम यहाँ पे देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ये सिस्टम स्टार्ट किया. इंश्योर कर रही है सरकार, गवर्नमेंट अपने एक्सचेकर के कॉस्ट पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कॉस्ट पे इसे इंश्योर कर रही है. अब बीच में ले आई इसमें प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो प्राइवेट सेक्टर को भी इंश्योरेंस मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का. यानी कि उस स्कीम का जो गरीब फार्मर्स के लिए लाई गई थी, वो प्राइवेट सेक्टर के फार्मर जो बड़ी फार्मर एंटरप्राइजेज हैं, फार्म एंटरप्राइजेज हैं, उनको कवर करने के लिए यूज़ करी जाएगी. तो अगर प्राइवेट सेक्टर बीच में आ रहा है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या होना चाहिए, इसके बेनिफिट्स कम होने चाहिए. सेंटर का या स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रीमिया पेड फॉर ऑल दीज इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर फार्मर्स शुड कम डाउन, शुड बी रिड्यूस्ड. समझ में आया? पिच तैयार कर दी, इनको बोला खेलो इंडिया खेलो. ठीक है. नाउ ऐसे तो कोई भी खेल लेगा, प्राइवेट सेक्टर आगे आने शुरू हो जाएगा नाउ, क्योंकि सारा रिस्क तो कंपनी के ऊपर आ गया. ठीक है. Framework for buyers and farmers to enter into a contract before, catch here the word to be focused upon, before a crop season starts, which guarantees the farmers, as today before the crop season starts MSP is declared, okay, which guarantees the farmers a minimum price and buyers an assured supply. That means the framework will ensure that contract will be signed before the crop season starts and at a price mutually agreeable to the farmer and the enterprise. Now here is your farmer, here is your enterprise. They both will enter. It will say that I am ready to pay 2 rupees per kg of rupees 2 per kg of potatoes. फार्मर सेज आज तक मैंने 10 रुपए से कम बेचा नहीं. ठीक है. नेगोशिएटिंग पोजीशन 0. ठीक है. इनके केस में नेगोशिएटिंग पोजीशन क्या है? वेरी हाई, एज हाई एज नॉट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. फार्मर को तुमने मार्केटियर तो बना दिया, लेकिन अभी तक तो क्या था, इसीलिए फार्मर ये कह रहा है कि पैरेलली गवर्नमेंट ड्रिवन एमएसपी होना चाहिए. अगर गवर्नमेंट ड्रिवन एमएसपी होगा तभी तो कुछ हो पाएगा. यहाँ पे गवर्नमेंट कहेगी कि हम 4 रुपये किलो लेने पे रेडी हैं, तब प्राइवेट सेक्टर कहेगा कि हम 5 रुपये किलो लेने को रेडी हैं. है ना? फ्लोर प्राइस तो गवर्नमेंट को सेट करना होगा ना. अब गवर्नमेंट ही अगर पिक्चर में नहीं है तो ये मिनिमलिस्ट प्राइस देंगे 2 रुपये. अब फार्मर ये सोचे कि मेरी ज़मीन है, आइडल पड़ी रहेगी, इसलिए मैं इसे क्या करूं, क्योंकि ओनली एंटरप्राइजेज हैं, दे विल बी हैविंग एन ओलिगोपोली. ओलिगोपोली कैसे? जैसे तुमने या तो एयरटेल का कनेक्शन लोगे या जियो का लोगे, एयरटेल जियो या तुम मरो. तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है ना जहाँ तक टेलीकॉम सर्विसेज आती हैं. अब पहले क्या था, एयरटेल की कॉल्स ड्रॉप होती थी, अब जियो में भी थोड़ा बहुत ड्रॉपिंग और ये सब शुरू हो गया है. राइट. तो यहाँ पे अदानी होगा, अंबानी होगा, पेप्सी होगी या फिर मासी होगी, मतलब सरकार नहीं होगी. समझ रहे हो बात को? मौसी यहाँ पे नहीं होगी बचाने के लिए. मौसी मतलब सरकार, क्योंकि मौसी बिक गई. वो अलग बात है कि जीजा ने शादी नहीं करी, शादी करी थी लेकिन बीवी छोड़ दी, लेकिन मौसी अभी नहीं आएगी टू रेस्क्यू दी फार्मर्स. समझ में आया? These are the same points on which we had invested 2 days. If I would not have invested that much time in the initial 2 classes, you guys would have been struggling here. समझ में आया ये सारा कुछ?
अब जीजा मासी को छोड़ के आगे चलो. नाउ न्यू लेजिस्लेशन विल एम्पावर द फार्मर्स फॉर एंगेजिंग विद. एम्पावर नहीं है, इट विल इन्फ्लुएंस फार्मर्स, इट विल परसुएड, बिकॉज विदाउट एनी अदर बैकअप. तुम लोग समझ आ रहा है कि सो गए हो? Influence, it will persuade or it will coerce the farmers. Farmers will have no option except to sell their produce in advance. ठीक है, तो processors, wholesalers, aggregators, large retailers, exporters, etc. क्या? Now, ठीक है, price assurance to farmers even before sowing of crops. Assurance और कोर्सिंग देम टू सेल, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होगा उनके पास. इन केस या तो हो ना कि बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हों, तब तो ठीक भी है, ठीक है, या तो बिल्कुल ओपन सेलिंग हो, तब तो ठीक है. लेकिन अगर छोटे छोटे उद्योग अब क्या करेंगे, छोटे छोटे उद्योग क्या करेंगे? गोडाउन खरीदना इतना मुश्किल है, राइट? जो छोटे आड़तियाज हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, वो हो सकता है कि 5 रुपये पर केजी दे दें. कोल्ड स्टोर्स हैं जिनके पास, वो 5 रुपये पर केजी दे दें. बट इतनी बड़ी कंपनीज़ के साथ compete करना मुश्किल होगा. ये कंपनीज़ क्या करेंगी? पहले प्रीडेटरी प्राइसिंग लेके आएंगी, जैसे जियो लेके आया. जियो इन फार्मर्स को बोलेगा, 1-2 साल का ये लोग गेम प्लान लेके चलते हैं. जियो इन फार्मर्स को बोलेगा कि हम तुम्हें उस आलू के 12 रुपये देंगे जिसे तुम्हें आज तक 10 रुपये से ऊपर नहीं मिले. फार्मर भागा भागा इनके पास जाएगा. 2-3 साल में सब छोटे प्लेयर ख़त्म, कोल्ड स्टोर और ये सब ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद फार्मर के पास बचा कौन? जो कंपनी का नाम था जियो, वो हो जाएगी मरो. अब 5 रुपये में बेचो. जियो ने भी तो यही किया ना, पहले फ्री में सिम ले जाओ, उसके बाद 350 रुपये दो, राइट? सो दिस इज मार्केट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी दैट दीज कंपनीज अप्लाई. इन केस ऑफ अ हायर मार्केट प्राइस, फार्मर्स विल बी एंटाइटल्ड टू दिस प्राइस ओवर एंड अबव द मिनिमम. देखो, इन केस ऑफ अ हायर मार्केट प्राइस, फार्मर्स विल बी एंटाइटल्ड टू दिस प्राइस ओवर एंड अबव द मिनिमम प्राइस. ऐसा आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के होने के बावजूद नहीं हुआ कि फार्मर को हायर प्राइस मिल गया हो, तो आज कैसे? राइट, इट सीम्स अनरियलिस्टिक. ये हो सकता है इसलिए क्योंकि सरकार ये कह रही है कि दिस APMC एक्ट के चलते फार्मर मजबूर था इसमें बेचने को. ऐसा नहीं है, फार्मर कभी भी मजबूर नहीं था. फार्मर यदि मजबूर था तो वो इसलिए था क्योंकि उसको यहाँ से फिनेंस मिलता था कमीशन एजेंट से, और उसकी ज़मीन के कागजात गिरवी थे. वो तो आज भी होंगे. वो तो कोई कंपनी लीज पे अगर फार्मर की लैंड ले रही है या कॉन्ट्रैक्ट लिख रही है तो वो कागज़ या कुछ ना कुछ तो लिखवाएगी. It will put the neck of the farmer on the line before entering into this kind of a contract, right? It will transfer the risk of market unpredictability from the farmer to the sponsor, to the company. Due to prior price determination, farmer will be shielded from the rise and fall of market prices. Clear? आइडिया सिम कंपटीशन में है ही नहीं. आइडिया अगर आप यूज़ करो, देखो अभिषेक बच्चन पनौती है, राइट? जहाँ जाएगा वहाँ कोई भी आइडिया काम नहीं करता. तुम देख लो, धूम की बात, धूम भी बूम हो गया वहाँ पे. नाउ कमिंग हियर, इट विल ऑल्सो एनेबल द फार्मर टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी. दिस इज़ अ गुड पॉइंट. यील्ड विल इंक्रीज. इसमें बेनिफिट पता है क्या है? कि भले ही पहले जहाँ पे 1 क्विंटल अनाज उगता था, वहाँ पे 1 क्विंटल अनाज उगता था 4 रुपये किलो या 5 रुपये किलो मिल जाता था 1 किलो आलू का या कुछ ऐसा, ठीक है? अब वहाँ 2 क्विंटल उगेगा और मिलेगा 2 रुपये, ठीक है? वोडाफोन है, राइट? नाउ इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड इम्प्रूव इनकम ऑफ फार्मर्स. दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू आर सपोज टू मेमोराइज फॉर प्रीलिम्स टू सम एक्सटेंट एंड jot down for your mains answer writing. Effective dispute resolution mechanism has been provided for with clear timelines for redressal. जिस कंट्री में जुडिशरी ना चली, उस कंट्री में किसानों के लिए ये चलेगा, राइट? खैर, वी शुड बी होपफुल कि ये सब होगा, कि टाइमलाइंस होंगी और ये सब होगा. जब तक एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं हो जाता, तब तक वी हैव इनफ रीजन टू सस्पेक्ट दिस स्ट्रक्चर ऑफ
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। इम्पेटस टू रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये अच्छी चीज़ है, ये होगी। नए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी। पैरेलली सरकार को फार्मर एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस करना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। क्लैरिफिकेशन, द फार्मर विल हैव फुल पावर इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू फिक्स अ सेल प्राइस ऑफ हिज चॉइस फॉर द प्रोड्यूस, सेल प्राइस ऑफ हिज चॉइस. They will receive payment within maximum 3 days. This is a good point. 10,000 farmer producer organizations are being formed throughout the country. अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो मोदी सरकार ने पहले ये किया है कि पहले फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को स्टिच टुगेदर किया है, ये संगठन बना दिया है। अब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह लाई जा रही है जो कि बेनिफिशियल हो सकती है। तो सरकार ने काफ़ी काम पहले किया भी है। आप ये डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हो। स्टेप 1 सरकार ने एग्रीकल्चर में क्या किया, सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आई, साइंटिफिक सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 सरकार ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर बेटर फिनेंसिंग, ठीक है, अभी तक के जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं। फिर स्टेप 3 यहाँ पे लिख लेना, मैंने स्किप कर दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ठीक है। पॉजिटिव साइड से भी हमें देखना पड़ेगा। फिर इन फार्मर्स को संगठित किया, इन फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी, सो दैट यहाँ पे अब थोड़ा सा कुछ ऐसे ड्रॉ आउट करोगे, टू इंक्रीज द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ द फार्मर्स, क्लियर, negotiating power of the farmers would go up. Then the government is introducing the second gush of reforms or second wave of reforms, or you can say agri reforms 2.0. मैं इसको ड्रॉ कर दूं अच्छे से, उसके बाद आज की क्लास को थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे, मतलब पूरा कंक्लूड करेंगे। देखो, देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सबसे पहले सरकार ने एंसिलियरी चीज़ें करी। क्या किया, फर्टिलाइज़र प्राइस को डीरेगुलेट किया। थोड़ा पीछे से चलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र प्राइस को डीरेगुलेट किया। फिर उसके बाद आधार लिंक्ड किया करप्शन वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने तुम्हें बताया सॉइल हेल्थ कार्ड। फिर उसके बाद सरकार ने और क्या किया है, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिनेंसिंग द एग्रीकल्चर। साइड में लिखते जाओगे फिनेंस के लिए साइंटिफिक स्टेप, यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार ने और क्या किया, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। 2 स्कीम के नाम लिखोगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। वो अलग बात है कि इन स्कीम के अपने कुछ फ्लॉज हैं। यहाँ पे तुम पीएम किसान और ये सब नाम लिखोगे, ठीक है, पीएम किसान लेके आई सरकार। ओवरऑल डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, ओवरऑल डायग्राम बनेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग दी फार्मर्स इनकम। सरकार की फेवर में लिखना पड़ेगा, वो अलग बात है कि मुझे तुम्हें क्रिटिसिज्म बताना पड़ता है क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग दी फार्मर्स इनकम बाय 2022, ठीक है। पीएम किसान जो भी स्कीम्स सरकार लेके आई है उसका तुम्हारे पास एक मेंटल मैप बना होना चाहिए। सॉरी, पीएम किसान, डबल इनकम नहीं होगी इसलिए डबल ए नहीं आएगा, पीएम किसान इतना ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब सरकार ने बाकी क्या किया, जो यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया था मैंने, डिलीट हो गया, सॉरी। तो पीएम किसान के बाद और क्या किया गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के वे में फार्मर टू ऑर्गेनाइज द फार्मर्स सो एज टू इंक्रीज देयर इनकम, टू इंक्रीज देयर नेगोशिएटिंग पावर, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग द फार्मर्स। अब यहाँ पे नेगोशिएटिंग वर्ड लिखना ज़रूरी है क्योंकि सरकार को कांग्रेस और ओपोजिशन और लोग ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और भी क्या किया है सरकार ने, यहाँ पे और स्टेप तुम्हें और भी लिख सकते हो, सारा कुछ याद करो एक बार। एमएसपी बढ़ाया सरकार ने, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जो रिसेंटली। फिर उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये हैं जो अभी तक, जस्ट अ मिनट, जो अभी रेड वाले रिफॉर्म्स है ना, ये तो रेड वाले थे जो पीस मील रिफॉर्म्स आए, ठीक है, पीस मील अप्रोच फॉलो करी। अब सरकार क्या कर रही है, होलसेल में फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स 2.0 लेके आ रही है। फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स 2.0, फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स 2.0 में क्या कर रही है सरकार, 3 बिल,
जो निकाल लेंगे दिल वो अलग बात है, वो क्रिटिसिज्म है, ठीक है। 3 बिल ऑर्डिनेंसेस के वे से जो लेके आई, इससे थोड़ा सा खतरा पैदा होता है। बट ये सेकंड रिफॉर्म है, ये जो पीस मील अप्रोच थी सरकार की, दिस वाज अ प्रिपरेशन फेज टुवर्ड्स, we can see it in this way if we were to see this all in the positive manner. Ultimately you have to write the positive thing, okay? Piecemeal approach जो थी, this was a preparation phase. This is like your mock test 1, comprehensive 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 1 2 3, समझ में आई चीज़। अब आगे देखो, अब तुमने गुडी गुडी वर्ड्स लिख दिए, ये डायग्राम बना दिया। However, the two major issues, please write down, however, the two major issues, the two major issues which are VIZ, which are adequate financing for farmers and proper canalization of farmlands. प्रॉपर कैनाल्स जो मैंने बातों में बताए थे, बातों बातों में समझाते हुए, कैनलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स, कैनलाइजेशन आर स्टिल लेफ्ट अनएड्रेस्ड, they are still left unaddressed, okay? So it is pertinent to know, I mean, these two issues are so crucial and so wide spanning that it would not be possible for even private sector to invest the capital resources required for canal system building in India, है ना। सबसे बड़े सिस्टम तो तुमने छोड़ ही दिए। दो चीज़ें, फिनेंस कैसे प्रोवाइड होगा ये नहीं बताया। चलो फिनेंस तो फिर भी हो जाएगा, जो कंपनी किसान की ज़मीन ठेके पे लेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लेगी, वो उसे पैसे भी देगी, है ना। क्लियर? सो दिस वाज ऑल। आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा अपने आप एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग देख के कवर कर लेना। 2 मेजर क्रूशियल इश्यूज अभी तक अनएड्रेस्ड हैं, उसमें से सबसे बड़ा है कैनाल सिस्टम। क्लियर? डन गाइज, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।